خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ. آج ایک ہمارا اسپیشل شو ہے اور یہ ہے عید اسپیشل. اور آج عید ملن ہے. عید کا آپ کو پتا ہے کہ ڈیمپنڈ ہے اس وقت. عجیب سی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف. کووڈ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. جہاں جہاں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان میں بھی اب تو خیر سچویشن بہتر ہو رہی ہے، لیکن انڈیا میں بہت بری حالت ہے. باقی جگہوں پہ بھی بہت برے حالات ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. یعنی جو تو آزاد لوگ ہوتے ہیں عید ان کی ہوتی ہے، جو محکوم ہیں، جو بیچارے مظلوم ہیں، ان کی کیا عید ہونی. تو اس لیے آج ہم نے سوچا کہ چلیں جو کچھ بھی ہے کم از کم ایک بہانہ بنا لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہو جائے. اور ہمارے جو JNN کی جو ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ آپ کا تعارف بھی ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ عید کی گریٹنگس جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. اور میں بہت خوش نصیب ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ I have a very diverse panel with us right now. اور اسٹارٹنگ ود منسٹر راجن سونی، جو ہماری یہاں پہ البرٹا کی منسٹر ہیں، ہیومن سروسز کی اور سوشل سروسز کی کمیونٹی کی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر عمران ملک. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے شو میں. پھر حمیرہ شامی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورنٹو سے. کرنل فاروق موجود ہیں، آپ کو ان کا پروگرام دیکھا تھا ہمارے ساتھ بچھڑ گئے کے حوالے سے. پھر ایئر مارشل کپل کاک صاحب، ماشاءاللہ ان کا تو ریگولر شو آپ دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. ایئر مارشل صاحب تھینک یو ویری مچ. پھر جنرل شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. جنرل شاہد صاحب کا بھی ہمارا ریگولر شو ہے، ذرا تھوڑا سا رمضان میں ذرا ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ وی ول بی بیک آن. اور پھر ندیم قادر صاحب موجود ہیں. ندیم قادر صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں لاہور کی. جو لوگ ہوٹلنگ وغیرہ کا سلسلہ کرتے رہے ہیں پچھلے 20-25 سال میں، تو ندیم قادر صاحب جو ہیں لاہور کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے. اور خاص طور پہ زینوا ریسٹورینٹ جن کو یاد ہوگا ان کو ان کا پتہ ہوگا. ندیم قادر صاحب جو ہیں، ندیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی. اور تو آج بیسیکلی ہمارے ساتھ جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہوگا، بلکہ مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ناظر حسین صاحب بھی، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن ان کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، ان کا میں دیکھتا ہوں فکس کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا فارمیٹ بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا کے 1-2 منٹ کی گریٹنگس دے کے تو پھر ہم لوگ موو آن کریں گے. جن لوگوں نے جانا ہوگا وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے سب لوگ بزی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا کے تو انشاءاللہ پھر ہم موو آن کریں گے. میرا خیال ہے کہ حمیرہ شامی صاحبہ نے جانا ہے، تو حمیرہ صاحبہ سے شروع کرتے ہیں. حمیرہ صاحبہ السلام علیکم جی. حمیرہ کین یو ہیئر اس؟ جی پلیز. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ آئی ایم گڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار انکلوڈنگ می ان یور عید شو. فرسٹ آف آل عید مبارک ٹو ایوری ون. Thank you. To Mr. Soni and all the esteemed guests from Pakistan and all over. عید ہمیشہ ظاہر ہے کہ ایک رمضان کے بعد ایک انسان کی تحفہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس دفعہ عید میں کووڈ کی جہاں دکھ شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عالم اسلام میں اسپیشلی پیلسٹائن میں جو سچویشن ہوئی ہے رائٹ ایٹ دا ہالیسٹ نائٹ آف دا ہالیسٹ منتھ ایٹ دا ہالیسٹ سائٹ آف مسلم. سو وہ بڑی دکھ کی بات ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ طریقے سے کی خوشیاں ظاہر ہے کہ نہیں سیلیبریٹ کر پا رہے. لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس ایشو کو دوبارہ جو 73 سال پرانا ایشو ہے اس کے لیے بھی اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دام در میں سکھنے جس طریقے سے بھی ان لوگوں کی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. جیسے بہت سے ریلیف اس وقت تو پریونشن تو ہو نہیں پا رہی، انٹرونشن بھی نہیں ہو پا رہی، تو بعد میں ریلیف کا ہی کام رہ جاتا ہے، جو کہ تھوڑا بہت ایک دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیسے کہیں گے اوپن پریزن جو ہے اس میں ہم لوگوں کو جس طریقے سے ڈفرینٹ ریلیف ایجنسیز تھرو ہم لوگ مدد پہنچا سکتے ہیں. This is the only thing that we are doing. لیکن since we are living in a free world اور ہم لوگ فری ورلڈ کی جتنے بھی پرلس ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو that gives us also that puts us into this condition also کہ ہمیں ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کی اٹراسٹیز ان پہ ہو رہی ہیں اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. اچھی بات ہے. اور واقعی
दिल तो इस वक्त दुखा हुआ है सबका ही, हर किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई दुख तो हमें इस वक्त महसूस हो रहा है. किसी को कोरोना और कोविड की वजह से हो रहा है, किसी को फलस्तीन का हो रहा है. यानी एक अजीब सी दुनिया में एक टेंशन सी फील हो रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा था ना कि ये ईद जो है ये डैम्पेंड हो चुकी हुई है और हमें उस तरह मजा नहीं आ रहा ईद मनाने का. लेकिन चूंकि लाइफ गोज ऑन, तो इसलिए हमने एक दूसरे से गपशप लगाने का, एक दूसरे के साथ चिट चैट करने का एक बहाना ढूंढा कि चलें इसी बहाने गपशप हो जाएगी. और हमारा जो पैनल है बहुत बड़ा, उससे जरा आपस में एक दूसरे की गपशप होनी चाहिए. तो हुमैरा, थैंक यू वेरी मच. इफ यू वांट टू स्टे इट्स ओके, इफ नॉट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और अगर आपने जाना है तो यू कैन ऑलवेज लीव. जी बहुत शुक्रिया. और इस पैनल पे मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि मेरा पाकिस्तान को मैं प्रमोट करती हूँ हर फोरम पे, जैसे आप भी करते हैं, मेरे थोड़े से डिफरेंट तरीके हैं टूरिज्म के रेफरेंस से भी. तो पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और मिस्टर सोनी को स्पेशली मैं दावत देना चाहूंगी कि वी वुड लव टू show you our beautiful country whenever you have time after COVID, of course. So we're already planning so many. ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह. So thank you so much for including me. Actually मैं यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट आई हूँ, but I would love to hear from you, Minister, and then I will leave in 5 minutes. जी मिनिस्टर जी, राजन जी, प्लीज ओवर टू यू. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, and बहुत बहुत ईद ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. I am just so thrilled to be here with such a distinguished group of people, and I will most definitely take you up on your invitation to visit Pakistan. There's much to see. I do agree. I think I would like to start off just by saying that I know that we are in very difficult times across the world, and the situation with COVID-19 in India and Pakistan is untenable. It's very disheartening because I have family in India, and I know many of you are in Pakistan right now or have family there, and it's very difficult to be standing on the sidelines and witnessing everything, including the current conflict that we're seeing between Israel and Palestine. It's very disheartening. I just wanted to give you some insight into what's happening here in my province. As I had mentioned, I'm the Minister of Community and Social Services. And in my city, we've had one of the hotspots of COVID-19 across the continent, the whole continent of North America. And we have a large South Asian population, many people from Pakistan, many people from India. And there's one thing that actually gives me hope. As part of my work that I do with my ministry, I provide funding to various different community organizations. And the way the Muslim community has stood up and has been of service during this pandemic, it's incredibly commendable. It's not something that we see very often amongst various different communities. So I know that we have the Al Rashid Mosque in Edmonton, we have the MCC community, we have We Care, MDI, the Canada-Pakistan Association, so many different groups within Calgary who are stepping up to ensure that we have food hampers and we have other mental health supports for community members. Now, what's happened here is due to public health measures, all faith-based institutions have reduced capacity and reduced attendance. But what I have seen, and it's the most beautiful thing, is that we have learned to express our faith in a different manner. We are expressing our faith through seva. And I'm from the Sikh community, so this is a fundamental cornerstone of my faith. But the Muslim community is expressing their faith not necessarily through the traditional manners. Of course, there's the prayers that happen every day, but being of service to vulnerable people in the community. And so I commend all of my fellow Albertans, and I know the same effort is happening everywhere across the world internationally. So once again, Eid Mubarak to everybody, and I'm so honored to be here as part of this discussion. Thank you very much, Minister ji. Thank you very much for your time. और ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ. ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਫਰਟ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਐਫਰਟ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਗਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ I'll stay for a little while. Wonderful. Thank you Humaira ji. If you want to leave it's okay, no problem. ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਪਿਲ ਕਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ can you please say a few words about Eid and your panel? Yeah, I think if with your permission for a change I'll speak in English because normally aapka to Urdu mein hota hai. But you know I'm a Kashmiri. For me I'm half Muslim, half Hindu. Not because of genealogy but because of culture. Because you know one is not genetically born into a religion. It's only when you're born that you take a religion. So for me Eid and Shivratri are two most important festivals from the time I was born in the collective peaceful coexistence which characterizes Kashmir for nearly 700 or 800 years since Islam came to Kashmir. So I would like to suggest, yes, we are going through very terrible times globally. I think no country is going through a more challenging time than mine, India, because we have, for the last 15 days or so, been adding 3.5 lakh people, 350,000 new cases every day, and we lose about 4,000 people a day. So you know what scale that is. I also want to suggest that today, when I saw the 6 national dailies in English, or 7 national dailies, all of them had a beautiful picture. I think you can Google it on your computers and phones of the Jama Masjid. The courtyard of the Jama Masjid, for the first time in decades, there was no one in that courtyard because of the pandemic. And so, but the picture is serene, it's so beautiful, and it just tells you God is there. If you're not there, God Almighty, Allah Ta'ala Mawjood hai, and He will get us out of this trouble. To the point that Rajanji made, I was very interested when she said that the Muslim community has been of great help and support in the pandemic that struck Alberta and other parts. I would like to pay a compliment to the fact that we have a majoritarian government last 6 or 7 years. There have been some intercommunal tensions from time to time, and that comes out of, if we have a majoritarian party or a right-wing party at the top, it's a global phenomenon. But what the pandemic, the worst instances in India has done is to bond the communities together, despite the overshadowing right-wing majoritarian party ruling India. So there is a natural human emanation of higher spiritual and higher values that emanate. And that is very encouraging. Rajanji, I'd like to suggest to you that I have been always in awe of our Sikh community in India. And the langar that they organize, the community service they have organized in this pandemic is not just fascinating, it's amazing. Even the oxygen. Oxygen. I mean, langar is a common thing in a Gurdwara, but now you have an oxygen langar. And there is this vignette I want to bring to your notice of a line approximately 1 kilometer long, at which every meter or so there is a chair. To that chair is connected an oxygen cylinder. So if a person is gasping for breath, as has happened to thousands in India who have died because they didn't get the oxygen in time, they can come to the chair and just suck in oxygen at a Gurdwara. It's outside on the main road. So It is not just community sacrifice, but the community sense of imagination, the community sense of creativity.
how do you relate a need to a requirement, and how do you become then a part of a solution rather than a part of the problem? And I'm also going to end with the fact that yes, there is Palestine didn't celebrate Eid at all. They only got airstrikes. They only got tanks, uh, tank shells fired by the Israeli tanks. But I think that moment should also pass. I'm rather disappointed that my own country didn't add to the power of the moment a degree of urgency for the two countries to come to the negotiating table. I think India could have been far stronger in critiquing Israel. But the cynics in my journalistic community say, how can you criticize a country which has just given you medical aid? That is the real politic of the situation. But in my own view, it was a very short-sighted move, and I hope corrections will be made. But the entire world, and this is which is encouraging, the entire world, including Pakistan, it was very gratifying to know Imran Saab on his visit to Saudi Arabia actually appeal to the world that action must be taken in Palestine. Same thing was said by India, I must clarify. India also drew attention to UN Security Council Resolution 2234, which is talking about two-state solution, which is talking about the illegal occupation of the Jerusalem area post 1967 by the Israelis, which is talking about other occupied territories in that war, and therefore those have to be vacated. I just Right. want to put a corrective to a mild critiquing I did of my own government. But the fact is that this has been put on the table, and I think the sooner it's so painful, it's so one finds so agonizing a situation where 31 to 37 children, including 3-year-olds in Palestine, have died on Very sad. Eid day. On Very sad. Eid day, I mean that is the painful part of it. But I'm sure better sense will prevail, and Inshallah. we will be through Inshallah. with the conflict in Palestine, Israel sooner rather than later. Thank you very much, Raj Saab, Thank- always giving me opportunities to talk. I talk Englishly, so please forgive me if I have Thank you. talked for more time than And I you know, should. I don't stop you. But you should. Chale. Rajan ji, Minister Sahaba, if you have some comment, it's okay. Otherwise, we'll move on. I was just listening very intently, and I think the only point that I have is I'm following the news in India very closely, and I'm aware of the service of the Gurudwaras and the community in terms of providing these oxygen stations to desperate people. And it makes me proud and it makes me sad at the same time. And so thank you for pointing out that the community is doing more than its part. There is never any doubt in my mind. And I would say the same about the Muslim community as well here in Canada. Thank you very much, Rajan ji. Thank you very much for your time. और सर ना क्योंकि काफी सारे लोग जड़े ना वो आने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडियो लेकिन more than 10 people cannot be in the studio. So in which case, ठीक है may I राजन जी. also, with your permission, Ishrar Saab, may I also take your leave? Sir, thank you very much. Thank you for your Thank you very time. much. Very kind of you. And I'll And see I'd you like very soon. to express my grateful thanks to everybody on this panel who's joined us and who given me an opportunity to say a few words. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very Imran much and see Saab. you very soon. Thank you. बहुत शुक्रिया जी. Thank you. Let me welcome Dr. Maliha Zeba Khan Sahaba. Dr. Sahaba जो हैं ये मैरीटाइम अफेयर्स की बड़ी एक्सपर्ट हैं, हमारे शोज में आती रहती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह. और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आपने थोड़ा सा टाइम देना है, तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रैवल भी कर रही थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हमसे आपसे गपशप लगाते रहेंगे. लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रा बताऊं कि हम थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसमें वो भी ज्वाइन कर सकें. तो
सीनियरिटी के हिसाब से कर्नल साहब से शुरू करता हूँ. कर्नल साहब, योर कमेंट्स एंड ग्रीटिंग्स प्लीज. इट्स वंडरफुल कि सब इकट्ठे हुए और ये ईद मुबारक के मौके पर उन लोगों को भी याद किया जिनके दुख भी है, और सब एक चीज है कि सब एक इंसानी हमदर्दी के नाते बोल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था. जिक्र थोड़ा सा मैं अपना मशरक़ी पाकिस्तान के ताल्लुक से करूँगा. तो सिर्फ ये दो दोस्त नहीं जानते, वो ये कोशिश है कि आई राइट कि ये वी हैव लॉस्ट वननेस फॉर एवर बट क्लोजनेस फॉर एवर इज नेवर लॉस्ट. एक तो ये बात है. दूसरा, रियलिटीज को लाया गया और ये उम्मीद की गई that we will have the best relations in between the countries here and the people, which was ignored. Anyway, बहुत सारे लोगों को टाइम देना है, तो जिन लोगों को भी मेरी बुक चाहिए पाकिस्तान में तो मैं भिजवा सकता हूँ. बाहर वालों को अगर चाहिए जिनको भी, तो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ as much as you want, but you have to get it, arrange its carriage. वो आप कर लेंगे. उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे खुद, किसी ना किसी के जरिए हम बंदोबस्त कर लेंगे. Thank you very much, sir. We are very thankful to you. बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया. Thank you. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. Thank you very much sir. Thank you and ईद मुबारक जी. अच्छा जी, जनरल शाहिद साहब, जनरल गुफ्तार साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह. वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे लेकिन वो स्टूडियो में आने नहीं दिया जा रहा था उनको, ये टेक्निकल इश्यूज हैं हमारे. तो जनरल शाहिद साहब, आपसे आगाज शुरू करते हैं जी. जरा बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसी चल रही है आपकी ईद? आपने कहाँ पे मनाई है वैसे बाय द वे? जनरल साहब को आवाज नहीं जा रही. चलें ब्रिगेडियर इमरान आपसे. अच्छा, कैन यू हियर मी जनरल साहब? या बिल्कुल. आपके कहने के मुताबिक मैंने म्यूट किया हुआ था अपना माइक. अच्छा, गुड, वेरी गुड. Thank you very much for getting me on this program, and I have always found it to be a great pleasure to be on your programs and to talk to you and interact with you. आपसे जो बातचीत होती है वो कोई मोनोलॉग नहीं होता है. That is the one thing I admire about your programs. It is always a dialogue, and how then things proceed is very stimulating intellectually and challenging as well. जहाँ तक ईद की बात है तो I think जैसे सबने बात की कि ग्लोबल लेवल के ऊपर मुसलमान जो है इस वक्त काफ़ी वो मुश्किल में हैं. एंड ऑल्दो एयर मार्शल साहब ने खाली फ़लस्तीन की बात की तो अच्छा ही होता है वो कश्मीर का जिक्र भी कर देते अपने वतन का. और बट आई वुड हैव talked about Kashmir also, whether and I wish that he'd been around. तो अच्छा होता कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी उन तक जाता. तो जो सारी बातें उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में की हैं, I think they are all applicable to Kashmir also. One, and number two, what's happening in Palestine is being mirrored in Kashmir. जो काम सारे वहाँ पे वो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के कर रहे हैं, जो वहाँ पे इतने क्लींजिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ कश्मीर में भी हो रहा है. और I think in our program tomorrow we can probably talk about it also. बाकी रही बात ईद की, so I think it's a good day and we must talk about good bright things today also. I think this pandemic has changed the way of life on the entire globe. और हमारा जो है वो way of life has also undergone a very massive change. Today we were together here, just one or two relatives had come over, and we were talking about the way we used to celebrate Eid as children, and when we used to live in a joint family. And no exaggeration, but we were about 2.5 dozen first cousins from the father's side alone. So you can imagine almost three dozen, and you can imagine the trouble we would create together on Eid. और आज हालत ये थी कि it was a virtual Eid. I think it is the new normal. वो सारे जो हम 3 दर्जन हम फर्स्ट कजन थे खाली फादर की साइड से, वो पूरे लाहौर में फैल गए और फिर पूरे लाहौर से निकल गए वो पूरी दुनिया में फैल गए. तो अब हमारी ईद जो है वो अब वर्चुअल ईद हो गई है. एंड नाउ आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल इन आवर लाइफ. Which is not a good normal actually. Pandemic or no, it's going to be a virtual Eid. And then we have 2 kids and they're both abroad.
तो अब एक साउथ पोल की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, द अदर वन इज इन अमेरिका टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. अब तय ये हुआ है कि सुबह 6 बजे जूम के ऊपर we'll all try to get together. So that again becomes the new normal. So even if you have to meet your kids, it had to be a virtual meeting. But I think then this is how life is, and this is how we should adjust ourselves to the new to the new way of life. And finally, it's a very happy Eid to all of you. And I hope you all stay safe and sound, and the pandemic stays away from you and keeps us all safe and sound. And hopefully, I think we should do it more often than on Eid alone. We could get together on other occasions also. हमें वैसे अच्छा लग रहा है ना ये ब्रिगेड साहब, अपने पैनल के साथ हमारी गपशप होती रहनी चाहिए. वैसे आपकी अच्छी आदत है कि आप और मतलब हम वो जब आपका प्रोग्राम देखते हैं सब साहिबान का, डॉक्टर साहब का भी, तो हम सुनते हैं खाली. वही मैंने आपसे कहा ना कि प्रोग्राम आई एंजॉय दोस प्रोग्राम्स वेयर यू आर इंटरैक्टिव, where you say something and there are a couple of questions on it and then you have to scratch your head and come up with another answer. That makes it all the more interesting. तो अभी इन सब साहिबान को, जो डॉक्टर साहब को मैंने देखा है, आज इनसे बात भी हो जाएगी. तो आई थिंक इट इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बात करेंगी. लेकिन मैं पहले थोड़ा सा जरा नदीम कादिर साहब की तरफ जाऊं कि नदीम कादिर साहब को आप लोग नहीं इतना शायद जानते हैं. नदीम भाई, आप तारुफ अपना खुद ही करवा दें, क्योंकि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, तो उसका तारुफ मैं तो नहीं करा सकता. नदीम भाई प्लीज, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम जी. एक तो सबसे पहले तो हैवी हार्ट के साथ ईद मुबारक. हैवी हार्ट तो सारों के हैं, और जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक. मैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हूँ जी, और होटल लाइन जो है उसके बिजनेस से मेरा ताल्लुक है, और ज़्यादातर मैं लाहौर में ही होटल्स के बीच में जनरल मैनेजर रहा हूँ. लेकिन ये जो ईद इस वक्त अभी जो देखी है ईद, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के हवाले से देखें, चाहे घरों के हवाले से, बड़ी अजीब और बड़ी डिफ़िकल्ट ईद जो है वो देखने को मिली है इस दफ़ा. और जब हम सुनते हैं बाहर, अपना लाहौर में अगर मैं हूँ तो लाहौर के हवाले से, फिर इर्द गिर्द के जितने भी और ममालिक हैं उनके हवाले से, तो इस दफ़ा वो ईद की चाशनी जो वैसे 2-4 दिन पहले बच्चों के हवाले से नज़र आती थी या बड़ों के हवाले से नज़र आती थी, वो रही नहीं है. तो इसलिए इस दफ़ा जो है वो पहले, और मैं आपको अपने घर की इसलिए भी बता रहा हूँ कि बच्चे बड़े फोर्स करते थे कि जी हमने ये लेना है, कपड़े लेने हैं, ये लेना है. ये एक पहली ईद आई है अपना रमज़ान के बीच में, अब तक किसी बच्चे ने यकीन करे ना नए कपड़ों की फरमाइश की है, ना कहा है कि बाहर लेकर जाएं, क्योंकि सब के सब डिप्रेस्ड हैं. और टीवी के ऊपर जो जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे बंदा कहता है कि यार खुशी हम कैसे मना सकते हैं जिस वक्त इतनी ज़्यादा आफत पूरी हर जगह पर है. लेकिन फिर भी हमने ज़िंदगी तो चलनी है, ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता मूव तो करना है. लेकिन इस सारे जो सिचुएशन में बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि कभी समझ नहीं आ सकती थी वो आ चुकी हुई हैं. और बहुत से लेवल के ऊपर बंदे सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह करते हैं, आपने अपनी लाइफ के बीच में ठहराव कैसे लेकर आना है, और कैसे जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है. ये चीज़ें आजकल सीख रहे हैं, जिसमें डिप्रेसिंग तो है लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा है. लेकिन आप सबको, आप स्टूडेंट्स को सबको देखकर बड़ी खुशी हुई. पहली दफ़ा इस राज साहब के इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ, और आइंदा भी मैं इसको फॉलो भी करूँगा. तो आपकी डिफरेंट बातें सुनकर और बड़ी मोहब्बत से सुनी भी और उसको सोचा भी. और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, और बहुत बहुत सलाम है. और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आई एम इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी किया है, तो इसलिए मेरा वो डिप्रेशन और भी ज़्यादा है. इसलिए सही बात है. नदीम कादिर साहब जो हैं जी, ये हमारे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाइयों हैं की तरह, और हमेशा मैंने इनको देखा है कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है. ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट. और होटल इंडस्ट्री में लाहौर में जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया है, माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया. और हमें ज्वाइन कर लिया जी ब्रिगेडियर फारूक साहब ने, माशाल्लाह. जनरल साहब, आपके लिए खुशखबरी है कि ब्रिगेडियर फारूक साहब इज हियर.
اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد یاسین چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ MLA ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں البرٹا کے، ہمارے یہاں سے کینیڈا سے MLA یہ منتخب ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی، تو ان کو بھی میں ویلکم کر رہا ہوں. یاسین بھائی بہت بہت شکریہ جی فار یور ٹائم. تھینک یو جی، تھینک یو. ابھی آپ سے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جنرل گفتار صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ گفتار صاحب جو ہے نا، یہ ان کا آج کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور جنرل شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کین یو ہیئر می؟ ہاں دیکھیں نا، یہ PTCL آپ کا نہیں چل رہا سر، PTCL آج گڑبڑ کر گیا. نہیں آواز آ رہی. چلیں آپ کو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں بس، ٹھیک ہے کوئی بات، اتنا بھی کافی ہے. اچھا چلیں، ڈاکٹر ملیحہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی بریگیڈ صاحب جو بات کر رہے تھے ان کے اوپر پلیز؟ اچھا ایک سیکنڈ بیفور یو گو، ذرا میوٹ کر لیں اپنے آپ کو سب لوگ تاکہ ہم اچھی طرح بات سن سکیں. پلیز میوٹ کر لیجیے گا. جی پہلے تو یہ بتائیے کہ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ بالکل آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم اینڈ عید مبارک. آپ سب لوگوں کو یہاں دیکھ کر اچھا لگا، کیونکہ ابھی ایک بہت ضرورت ہو گیا کہ عید کے موقع پہ ہم اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو ملیں. چلے ورچولی ہی صحیح، ہر برائی میں کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. تو یہ جو پینڈیمک نے ہمیں دور کیا فزیکلی، لیکن ہمیں الیکٹرانکلی قریب کر دیا. شاید مجھ جیسے لوگ یا مجھ سے سینئر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا. ہم سیکھ رہے ہیں کافی کچھ اس ذریعے سے، تو اچھائی بھی موجود ہے. اور سب کی میں باتیں جو سن رہی ہوں، بات یہی آ جاتی ہے کہ عید ہے مگر ایک الگ رنگ میں ہے، دکھ بھی ہے، آنسو بھی ہے، مگر عید ہے، خوشی کا نام ہے. ہم عید میں رکھ سکتے ہیں، مگر کشمیر کو دیکھیے، فلسطین کو دیکھیے، جہاں پہ بھی ہے تکلیف ہی ہمیں نظر آ رہی ہے. جس کو مسلم امہ کہتے تھے اس کا وجود تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتا. ہم ان دکھوں کو بھی انڈیویجولی ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہے تو صرف پاکستان اس چیز کو دیکھے گا، یا ہندوستان صرف اس میں آپریسر کے طور پہ آئے گا، یا اگر فلسطین کا مسئلہ ہے تو یہ فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل کا ہے. لیکن یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کی ہم بات کریں تو ہمارا تو پرنسپل اسٹینڈ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. فلسطین کے معاملے پہ آپ دیکھیے قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، کشمیر کے معاملے پہ دیکھیے کہ ہمارے پرنسپل اسٹینڈ ہے. تو ہم جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف ہی ہمیں ہونا چاہیے. کم از کم ایمان کے اس کمزور ترین درجے پہ تو ہوں کہ ہم اس کو برا جانیں کہ ظلم ہو رہا ہے. ہم بہت نہیں کر سکتے، کم از کم جہاں جہاں جس فورم پہ ہوتا ہے آواز بلند کریں. باقی تو یہ دن سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. روزوں کے بعد عید آتی ہے، سب کی محنت ایک طرف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر فضل کرے، آسانی کرے، پینڈیمک سے بھی ہمیں نجات ہو. مگر اس نجات کے لیے ہمیں خود بھی ایفرٹ کرنی ہوگی کہ SOPs کو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے. آج بھی میں ٹریول کرتے ہوئے دیکھ رہی کہ دنیا آزاد، لٹرلی آزاد ہے، کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ پتہ نہیں کون سے SOPs کہاں فالو ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال اچھے کی امید تو ہے. کوئی ٹائم تو ہوگا ہی ختم ہو جائے گی سب چیزیں، آزمائش. بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ. اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، کیونکہ آپ دونوں اسٹریٹجک لیول پہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپس میں، کوئی کویشچن وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو آپ ضرور کیجیے گا. ان دا مین ٹائم میں ذرا سر مجھ سے آپ کویشچن پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں. ہاں صحیح بات ہے، چلیں کوئی بات نہیں. لیکن ڈاکٹر ناظر صاحب ہمیں جوائن، آپ مشکل میں نہ ڈالیں. آپ نہیں بالکل کوئی مشکل، آج کا دن تو بالکل ہی مشکل والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ناظر صاحب جو ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے شوز میں. ڈاکٹر ناظر صاحب جو ہیں وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر ناظر صاحب اوور ٹو یو جی. السلام علیکم اینڈ عید مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کسانہ صاحب، آپ کو اور تمام حاضرین کو السلام علیکم اور عید مبارک. اور بےحد خوشی ہوئی سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اور سب کو ایک ساتھ سن کر، سب کے خیالات سن کر. عید کے حوالے سے ظاہر ہے کہ فلسطین کی وجہ سے جو کچھ وہاں ہوا
हमारी ईद मुतासिर हुई, क्योंकि ज़ाहिर दिलों में जब गम हो और कोई ऐसा मौका हो तो खुशियों की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ईद को मनाना, तो वो हमने पूरा किया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ईद मनाई। चलें, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अगर किसी ने ईद वाले दिन कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग की थी, अभी तक उसके असरात हैं, तो वो डॉक्टर साहब से पूछ सकता है कि क्या किया जाए। ओवर ईटिंग हो जाती है क्योंकि अपने घर के अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है और हर जगह मुख्तलिफ किस्म अक़साम की डिशेस बनी होती हैं। ईद का दिन होता है तो दिल भी चाहता है, खुशी का वक्त है तो लोग ज़्यादा खाते हैं। ओवर ईटिंग का रिज़ल्ट आ जाता है, अक्सरियत को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। ईद के दिन ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि स्टोमक आदि है, इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस चीज़ का आदी है कि दिन में हम उसके हवाले कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। एक फास्टिंग है, पूरे दिन की फास्टिंग है। ईद के दिन जब ये अचानक एक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकवेशनली एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और वो इस पर रिएक्शन करता है। ये फास्टिंग साइंस में भी लिखा है कि अगर कोई शख्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते की फास्टिंग करके जैसे ही अपनी रूटीन पर आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से एक रिएक्शन सामने आता है। तो इसका तरीका यही है कि अगर पहले दिन ओवर ईटिंग हुई है तो दूसरे दिन ब्रेकफास्ट और फिर मगरिब तक सिर्फ फ्रूट्स या ऐसी लाइट सी कुछ चीज़ें ले ली जाए और अपने स्टोमक को थोड़ा सा आराम दिया जाए, ग्रेजुअली उसको उस रूटीन पर लाया जाए। ठीक, चलें, इस पे मजीद हम चर्चा करते रहेंगे। जनरल गुफ्तार शाह साहब, अब मैं आपसे मेरा ख्याल है कमेंट ले ही लूं क्योंकि आपके साथ ना ज्यादती हो रही है, बार बार आपको कुछ गड़बड़ हो रही है। अब आप मेरा ख्याल है अब आप मैदान में आ ही जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है पहले से। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, ईद मुबारक वंस अगेन। मैं बीच में आता जाता रहा हूँ इसलिए मिस कर गया फारूक हमीद, एन ओल्ड फ्रेंड, इसी तरह बेड इमरान, जनरल शाहिद, और अभी तारुफ हो गया नदीम साहब से भी, और डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, और इसी तरह यासीन साहब है मेरा ख्याल है जी, यासीन साहब जी। It is a pleasure to know all of you and to be with you this evening. ईद के बारे में ही ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो सच्ची बात तो ये है कि ये ईद पहले ही बहुत फीकी थी और ये गज़ा और यरूशलेम की जो फ़ज़ा है इसने और ख़राब कर दिया। अभी बैठे बैठे मुझे एक शेर इसरार साहब आपके नाम से आ गया। अच्छा, हाँ, कभी कभी ऐसा शौक करता हूँ। माशाल्लाह। एक तो ईद ही कुछ ऐसी थी इसरार, ओए होए होए, एक तो ईद ही कुछ ऐसी थी इसरार मजीद उदास कर गई गजा की फजा। हाय हाय हाय। तो ये हालत है। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप सारी बैकग्राउंड देखें और देखें किस तरह इसराइल ने पूरे पीरियड ऑफ टाइम ये नॉर्मल चेंज किया है, एंड एवरी टाइम देयर इज अ न्यू नॉर्मल, और ये भी कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे और फिर वो ये जो है स्टार्ट पॉइंट ये हो जाएगा, थ्रेशोल्ड बेंचमार्क यहाँ से शुरू हो जाएगा, अगली दफ़ा हम इसके यूज्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप वो और आगे चले जाएंगे। कुछ ऐसा चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट 70-80 सालों से और हम इसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरे तासुरात हैं ज़ाती, हैविंग लिव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, हम हर चीज़ को इस्लाम और उम्मा के साथ जोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात है। वहाँ पे ये लफ्ज़ सुनने को कम ही आता है और वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अरब का है। अरब और इसराइल, यहूदी और मुसलमान अरब, इसराइली अरब और गैर इसराइली अरब, इस तरह के अल्फाज, फ़लस्तीनी। तो हमारी सोच में और जो लोग इस चीज़ से मुतासर हैं इन हालात से, उनकी सोच में भी फ़र्क है अनफॉर्चुनेटली। और ये एक और वजह है जिसकी वजह से हमें तुर्की को, मलेशिया को, जो खालिस अरब हैं वो उस फोल्ड में देखना नहीं चाहते। यानी आप पिछले दिनों ये चीज़ें हो चुकी हैं, आप सबके नॉलेज में हैं, वो समझते हैं कि हम ही इस चीज़ के ठेकेदार हैं और हमें ही जो कुछ करना है अच्छा या बुरा। तो ये पाकिस्तान, तुर्की या मलेशिया, इनका क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीन के साथ, ये क्यों
मुदाखलत करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब भी मुश्किल वक्त उन पे आया है तो फिर हमारी तरफ ही देखते हैं। सही बात। जी जी, तो ये है। बहरहाल अगेन आप सबको ईद मुबारक हो। कोई ऐसा और इसके अलावा सियासी मौजू भी नहीं है इस वक्त। नहीं, आज हम सियासत पे बात ही नहीं कर रहे जी। जी जी, आज तो सिर्फ आपके मैंने साथ करके तकरीबन सुने हैं, बड़ा खुशी हुई मुझे, और कुछ नए दोस्तों से तारुफ भी हो गया और कुछ पुराने दोस्तों को बड़े अरसे बाद देखने का और उनको सुनने का मौका मिला। बस यही है हमारा असल में बेसिक जो पॉइंट था हमारा, यही था कि एक दूसरे से गपशप हो जाए। जी जी, ये मैं आपको शेयर भेज दूंगा ताकि आप अपने नाम से इसको बेशक छाप दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता नहीं था कि आप शायरी भी करते हैं। वो करता है, इशारा करता है। बड़ी नवाजिश है। और ब्रिगेड साहब, मुझे पता है आप बड़े इस वक्त बेताब हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले जरा यासीन साहब से बात करना चाह रहा हूँ। यासीन चोई साहब जो हैं, ये हमारे यहाँ से कैलगरी से MLA इलेक्ट हुए थे, पाकिस्तानी हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और फिर ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन इमिग्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा के। तो इसलिए यासीन भाई, आपसे गुजारिश है कि अपनी ईद जरा बताएं कैसी गुजरी आपकी, और अल्बर्टा गवर्नमेंट जो है वो ईद के हवाले से क्या कर रही है, और हमारे जरा थोड़े से नाजरीन के लिए कुछ पैगाम शिगाम देना। Muted, you're muted. Just unmute yourself, please. Can you hear me now? Yes, sure. Assalamu alaikum, Mr. Kasana Sahab and all participants. आपका बहुत बहुत शुक्रिया for the invite here. मैं आपके सारे नाज़रीन को, सामीन को यहाँ कैलगरी में, अल्बर्टा में, कनाडा में, across the world अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये जो ईद थी, आपको पता ही है, जिस तरह पिछले 1 साल से जो पूरी दुनिया में एक वबा चली हुई है, हम भी उससे अच्छी ठीक ठाक इफेक्ट हुए यहाँ पर भी, इस सूबे में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे और हमको सबको अपने ईमान में रखे। नॉर्मली हमारी ईद रमज़ान गुजरता है, आई लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें साल में 1 महीना दे रखा है टू रीवैटलाइज, री-एनर्जाइज, स्पिरिचुअलाइज, we all try to take advantage of that। उसमें certain activities होती हैं जो हमें मतलब ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, अफ्तार डिनर होते हैं, तरावी होती है, मस्जिद में फंड रेजिंग होती है। तो इस रमज़ान में वो चीज़ें नहीं हो सकी उस लिहाज से जिस तरह नॉर्मली होती हैं। तो ये हमारी मजबूरी थी, और इस तरह हमारी रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में उन पर भी कैपेसिटी का है, रिड्यूस कैपेसिटी है, वहाँ पर भी तो वहाँ पर लोग नहीं जा सके। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि यहाँ के जो लोग, कैलगरी के जो लोग हैं, जिस तरह हमारी कम्युनिटी है, जिस तरह उन्होंने फॉलो किया है ये जो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि हमारी किसी मस्जिद से कोई खबर इस तरह नहीं आई कि वहाँ पर इस तरह स्प्रेड हुआ है या इस तरह कुछ इस तरह का कोई वाक़या हो गया है। जैसे बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप से भी एक का दो का वाक़या हो गए थे, लेकिन हमारी जितनी मसाजिद हैं उनमें से कोई इस तरह की खबर नहीं, which is very good, which basically tells us that we follow the laws and we are restricting ourselves to the pandemic laws. It's not, गवर्नमेंट को खुशी नहीं होती कि लोगों को घर उठा कर रखे, लेकिन ये मजबूरी है, और इसमें हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। और अब जिस तरीके से हमारी जा रही है वैक्सीनेशन जा रही है, आपको पता है अल्बर्टा में वी आर ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल हियर जो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है। दैट वाज yesterday. So out of 4.5 million people in this province, about half of them have been vaccinated at least for one shot. Very good. One dose. तो इस सिलसिले में हमने काफ़ी जो कुछ हमारे बस में है, गवर्नमेंट के अख्तियार में है, वी डू आवर बेस्ट टू मेंटेन बोथ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। लेकिन एक एहतियात के इसके लिए हमें एक एहतियात के साथ चलना पड़ता है। और वी ऑल वी रिक्वेस्ट इज के प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस। 1-2 चीज़ें हमने रमज़ान में जो अपनी कम्युनिटी को के लिए की थी, जिससे उनको फायदा हो सके। कुछ लोग, आपको पता है वैक्सीनेशन चल रही है, तो कुछ लोग रोजे की हालत में नहीं करना चाहते थे वैक्सीनेशन, तो सम पीपल अप्रोच्ड मी। सो व्हाट वी वर एबल टू डू इज कि हमने एक सेंटर कैलगरी में हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है,
उसके आवर्स वैक्सीनेशन सेंटर के आवर्स हमने ज़्यादा कर दिए थे फ्रॉम आई थिंक वी वर ओपन अंटिल 11 o'clock. So even 2 hours after the aftar time, so people were able to go there and get vaccinations and as well. तो इसके अलावा जो हमने एक दो चीजें और भी हुई हैं वो अभी तक ongoing हैं. ये आपकी क्वारंटीन कुछ लोग हमारी जो this is across the board now in this province, people who are unable to quarantine at home because of ये जो आपकी requirements हैं कि दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलना, घर में अगर एक वाशरूम में तो उसके लिए हमने होटल में if people needs help they can go to hotel जिसमें government will take care of the expenses. They will quarantine them for 14 days, or at the end of the day they will there's a little bit of money to that. Stipend भी है. Yeah. Stipend भी है almost $700. Yeah, so yeah, about $625 I think it is. तो ये जो चीजें जो कुछ हम कर सकते थे यहाँ पर with our resources and उनके मुताबिक वो हो रही हैं. लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो ये this is the last Eid and last Ramadan in which we were restricted like this. आइंदा इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारी वैक्सीनेशन चल रही है तो चीजें बेहतर होने की बहुत चांसेस हैं within 2-3 months. और जब आपके वैसे भी 60-70% लोग आपके वैक्सीनेट हो जाएं, वैक्सीनेशन हो जाएगी लोगों की, तो फिर उसमें आपकी एक वैसी बात रहती है. डॉक्टर यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी है वो भी आ जाएगी बीच में कुछ. तो आई होप कि अल्लाह ताला सबको अपने फ़रमान में रखे. ये डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. बिल्कुल ठीक है. इस पे मजीद भी बात करते हैं. देखिए थोड़ी सी अगर आपने जाना ना हुआ तो नदीम भाई अगर आपने जाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर जाने से पहले अगर आपने सलाम दुआ करनी है तो एक दफा कर लें. फिर मलिहा साहब ने भी जाना है, वो भी मेरा ख्याल है फाइनल कमेंट अगर देना चाहती हैं वो भी दे दें. जी नदीम भाई ओवर टू यू. जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी. आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा. तो आज मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ पर भी अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ, वहीं से मैं कर रहा था. तो अभी वापस घर जाना है और इंशाल्लाह ताला इसरार साहब के साथ आप और बाकी आप लोगों से सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. और आइंदा इंशाल्लाह आई विल बी डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग जो जब भी इसरार साहब ने चाहा. और इंशाल्लाह ताला और आपको अल्लाह ताला बहुत बहुत जो है वो सलामती से रखे और अपना ख्याल बहुत बहुत रखें. और इसरार साहब आप अपना ख्याल रखें और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर मलिहा आपका. मुझे भी इजाजत दीजिए और उम्मीद है कि हम अगली ईद इससे बेहतर हालात में मनाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे और अल्लाह ताला हालात को अच्छा करे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. मुझे पता है आप बहुत ट्रैवल किया आज आपने, और लेकिन ये था कि चले इसी बहाने मुलाकात होगी सबसे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं सारे इनका आपस में भी जरा एक रिलेशनशिप जो है वो एक इस तरह का इंटरेक्शन होता रहे, ताकि जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो आपस में गपशप उनकी चलती रहे. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. नाउ कम्स ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब. ब्रिगेडियर साहब क्या हाल है जी? जी इसाक भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. बड़ी खुशी हो रही है. मैं अपने मोहतरम हमारे बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर जनाब जनरल गुफ्तार शाह साहब को इतने अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ. जनरल शायद वो तो कितने अरसे अब काफी हम और वो इकट्ठे आपके प्रोग्राम में आते हैं. फिर दोस्त कितने सालों से हमारे लाहौर के कोलिशन पार्टनर मीडिया के इमरान मलिक, माशाल्लाह क्या धुएंधार कॉलम इनके आते हैं नेशन अखबार में, और फिर बारी दुनिया इनको कोट करती है. और हमारे दो मोहतरम गेस्ट जिनको आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ. लेकिन मैं एक चीज बता दूं पहले कि जनरल गुफ्तार साहब के हवाले से शायद आपने बता दिया हो मेरे आने से पहले, या शायद आपको मालूम हो या शायद ना मालूम हो. मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जनरल गुफ्तार ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि ही हैज बीन द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द रॉयल जॉर्डेनियन, उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ उनके हैं, उनके ये स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रहे हैं काफी अरसा. अभी मेरे ख्याल कुछ अरसा पहले ही वापस आए हैं.
तो ये आजकल के जो हालात हैं, मेरा ख्याल है जितना ये बेहतर समझते हैं क्योंकि ही इज बीन देयर, तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा था। फिर ऑफ कोर्स जनरल मोहम्मद शाह जो हैं ये एज ए यंग ऑफिसर सऊदी अरेबिया में रहे। मेरा ख्याल जनरल गुफ्तार भी एज ए यंग ऑफिसर इन्होंने मिडिल ईस्ट में की अपनी 3-4 साल की डेपुटेशन जो है वो QMN का मुल्क जो है वो भूल रहा हूँ कुवैत है या सऊदी अरेबिया, आई डोंट रिमेंबर नाउ। मैं सऊदी अरेबिया में जो हमारा पहला ब्रिगेड था उसके न्यूक्लियस में था, ऑल आर्म न्यूक्लियस। जी ब्रिगेड जो पहला ब्रिगेड था। तो ये हमारे दोनों मोहतरम जो जनरल ऑफिसर हैं, इन दोनों जनरल ऑफिसर जो हैं इनका बड़ा तजुर्बा है अपना मिडिल ईस्ट का फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वो लगा बात है कि मैं 4 साल रहा तो वाशिंगटन में रहा। ब्रिगेडियर इमरान मलिक ने अपना जो आर्मी वॉर कोर्स है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस वॉर कोर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जो बाहर करते हैं हमारे ऑफिसर, वो उन्होंने अमेरिका में किया हुआ है, कार्लाइल बैरक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द प्लेस। तो आपने माशाल्लाह, और बाकी हमारे जो 2 भाई हैं अपने फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इसरार भाई आप इस वक्त, मैं आपको ये बता दूं कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है, यू बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। लोग बड़ा शौक से आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और लोगों को बड़ा इंतजार होता है आपके प्रोग्राम का। तो मैं आप बस ये कहूंगा कि मजा नहीं आ रहा आजकल, एक ओवरऑल स्टेट ऑफ डिप्रेशन है। मैं आपको बता दूं, एक ये कोविड की वजह से 1 हफ्ते से हम लॉकडाउन में बैठे हैं, ठीक है ना जी। हमारा जो लाहौर का डिफेंस क्लब है, जो हमारी जिंदगी का, जिसके गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है, वो डिफेंस क्लब भी बंद है 1.5 महीने से बंद है। अब शौक पूरा करने के लिए चले जाते हैं टेक अवे के लिए, तो टेक अवे को लिया तो आधा घंटा जो है ना ऐसे अकेले लॉन में फिरे, ताजी हवा खाई, इससे ज्यादा ना आप किसी को मिल सकते हैं, ना वहाँ कुर्सियां बैठने के लिए। तो हम तो बेताब हैं कि डिफेंस क्लब खुले ताकि हमारी वो जो रौनक है वापस आए। भाई दोस्त आ रहे हैं, उससे गपबाजी हो रही है। अच्छा, वो चीज भी नहीं हो रही। बिफोर जनरल गुफ्तार रिस्पॉन्स टू यू, मेरा ख्याल है कि यासीन भाई ने मेरा ख्याल है जाना चाह रहे हैं। यासीन भाई, जाने से पहले कुछ फाइनल वर्ड्स प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हुई आपके पैनलिस्ट को देखकर। मेरी ज़्यादा वक्फियत तो नहीं है, लेकिन looks like a lot of expertise and experience and wisdom there. तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और we will keep in touch. I will come to your program. We talk about your here some time later this week. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। ईद मुबारक। Thank you very much for joining us, Yasin bhai, and good luck to your government also. Thank you sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं क्विकली कि ना सिर्फ कोविड का लॉकडाउन का डिप्रेशन, बल्कि चलो शुक्र है कि इस 10 दिन में कम से कम ये है कि कोविड पे हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि NCOC के रोज मुझे उसकी वो जो सिचुएशन रिपोर्ट है, उनकी जो प्रेस रिलीज है, उसकी कॉपी मुझे भी सुबह 6 बजे मिल जाती है। तो कल तक तो सूरत हाल बहुत अच्छी थी। 20,000 एक्टिव केसेस हमारे कम हो गए पिछले 12 दिनों में, और हमारे जो वेंटिलेटर्स की जो ऑक्यूपेंसी है, जो पहली मई को तकरीबन 70% तक चली गई थी बड़े शहरों में, वो आहिस्ता आहिस्ता गिर के कुछ 45 to 50% पे आ गई है। तो उस लिहाज से नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं, जिसने पीक किया था आज से 10 दिन पहले 200 प्लस, वो कल परसों 48 थी, कल फिर वो 82, तो वो भी कुछ 100 से नीचे आनी शुरू हो गई है। सो एक्चुअली द लॉकडाउन हैज वर्क। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ओवरऑल फिर वो गजा का, जिस तरह जनरल गुफ्तार बात कर रहे थे, जो कुछ हुआ है, जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो फॉरेन मीडिया को देखा है, तो बड़ी सख्त तकलीफ, बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। ओवर और आज देखें ना, जो आज उन्होंने टावर बर्बाद किया है, वो मीडिया वाला, जो इंटरनेशनल मीडिया, वहां पे मीडिया देखें। अब आप, तो मुझे किसी ने कहा अपना सोशल मीडिया पे कि जनाब पाकिस्तान जो है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा भी पाकिस्तान क्या कर सकता है? We are thousands of miles away from that area of जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और गाजा खुद सराउंडेड है by the Israelis। ये अरब आर्मीज जो हैं, जो इस वक्त इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, उसके अलावा टर्की हो गया, जो बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, जिनके बेशक इजिप्ट के साथ, इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट है,
भाई अब वो जब कुछ नहीं मिले, इंटरवेंशन नहीं कर रहे तो हम यहाँ से बैठ के क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं? हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, मेडिकल मिशन भेज सकते हैं जब कल कोई जंग रुकती है, ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेज सकते हैं, C-130 भर भर के मेडिकल सप्लाई भेज सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। जब एक इंटरनेशनल एड का जो मामला जो है वहां पे शुरू होगा तो वहां पे जो अपने हमारे अरब भाई हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉर्डन में मैंने अभी देखा कि 2 दिन पहले कि जॉर्डन के जो वेस्ट बैंक के जो अपना सिविलियंस हैं, जेरूसलम अपना ये उनका जो कैपिटल है जी, वहां से वो चल पड़े हैं, वो देर मार्चिंग टुवर्ड्स द वेस्ट बैंक। तो उस तरह की सूरत हाल है। तो अभी हम यहाँ पे फंसे हैं, अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, हम इंडिया के साथ फंसे हुए हैं, कश्मीर वाला मामला है, हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? सो तो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल को ज्यादा इतनी पॉजिटिव नहीं है। डॉक्टर नाजिर साहब आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं इस हवाले से, जरा बताइएगा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, तो मैं तकरीबन 20-22 साल वियना ऑस्ट्रिया में गुजारा है। वहाँ पर जेविश बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी वियना में रहती है। फ़लस्तीनी कैंप्स भी वहाँ मौजूद हैं, फ़लस्तीनी सफारतखाना भी है। लेकिन जब फ़लस्तीनियों से हम मिलते हैं तो हमने एक बात महसूस ये की कि उन्हें कश्मीर के बारे में या मुसलमानों के दीगर इश्यूज़ के बारे में वो लाइल्म है। उन्हें दुनिया में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि उन्हें क्या इशू है। ना वो किसी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, ना वो कश्मीर के इशू पर कोई बात करते हैं, ना बर्मा के इशू पर। वो जब उनके साथ कोई इशू होता है वो फ़लस्तीन की बात करते हैं, अरबों को जमा कर लेते हैं, सबसे इमदाद लेना चाहते हैं। ये और एक और चीज़, यहूदियों से जो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनसे भी हमारी मीटिंग्स रही। डॉक्टर थॉमस क्लेस्ट्रिक जो ऑस्ट्रिया के सदर थे, उन्होंने बहुत कोशिश की फ़लस्तीन का मसला वियना में हल कराने के लिए, और उन्होंने ये चाहा कि यहूदियों को, फ़लस्तीनियों को, उन्होंने वियना में ओपन डोर्स के नाम से उन्होंने कई ऐसे तकरीबात की और मुसलमानों को, यहूदियों को बुलाया। लेकिन एक कमज़ोरी ये देखने में आई कि मुसलमानों की तरफ से कोई काबिल ज़िक्र लीडर वहाँ नहीं पहुँच सका जो टेबल टॉक का एक्सपर्ट हो, और ये मसला जू का जू रहा। 2003 में डॉक्टर थॉमस क्रिस्टल का इंतकाल हो गया और ये मामला वहीं पर ही रुक गया, वरना माशाल्लाह काफ़ी आगे बात जा रही थी। क्योंकि वियना में जो यहूदी रहते हैं वो इसराइल को पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि इसराइल में जो यहूदी हैं वो लो क्वालिटी के, वो जो किसी मुआशरे की जो एक डी क्लास होती है, वो ये कहते हैं कि इसराइल में डी क्लास यहूदी रह रहे हैं और हम उनको पसंद नहीं करते, ना उनकी गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से वो इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि रूस के इलाकों के जो रशियन स्टेट्स थी एक्स और आज जो ज़्यादातर ये वहाँ के यहूदी इसराइल में पहुँचे हैं, लिहाजा उनके पास ना कोई मैनर्स हैं, ना वो कोई तालीम याफ्ता हैं वो यहूदी, ना ही उन यहूदियों की कोई ख़ास तरबियत है। लिहाजा जहाँ उनको मौका मिलता है वो जानवरों की तरह लाइक एनिमल्स वो अटैक भी करते हैं, मारते भी हैं। वो इसलिए जो तालीम याफ्ता यहूदी ख़ास तौर से जर्मनी के, ऑस्ट्रिया वगैरह के हैं, वो अपने इसराइल को पसंद नहीं करते। अब यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये मौका है कि हम ऐसे यहूदियों के तबके से बात करें, उनके पास जाएं और उनको अपने साथ मिलाएं। हमें जब भी कोई इशू आता है हम सिर्फ मुसलमानों में उसका हल तलाश करने की गलत कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि उन लोगों को भी साथ मिलाएं जो प्रो इस्लामिक हैं, जो प्रो मुस्लिम हैं, उनके साथ हमें जाना होगा। वो यूरोप में मौजूद है वो तबका, लेकिन तो आप हजरात माशाल्लाह इतनी कीमती शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमें तो उन्होंने तन्हा छोड़ा हुआ है हर लिहाज से। लेकिन जब उनको इशू आता है तो वो हम हमारी तरफ देखते हैं, फ़लस्तीन वाले ये सब लोग, और हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला करे कि इसमें मामलात को कोई रास्ता निकल सके। जनरल शाहिद साहब, आपकी आवाज़ हमें पूरे प्रोग्राम में सही तरह नहीं आई, अभी एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही। लेकिन इसका तरीका ये है कि हम सब आपको ईद मुबारक कहते हैं, सब आपको हम दुआएं देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही तो क्या हुआ, हमारी आवाज आप तक जाएगी इंशाल्लाह। देते हैं, देखा ना, नहीं आ रही। ये पीटीसीएल बदलें सर, पीटीसीएल बदलें, पाकिस्तान को कोई और नाम रख लें, लेकिन ये पीटीसीएल नहीं चल रहा आपका। तो हम सब आपको जी सब ईद मुबारक कहते हैं।
ब्रिगेडियर साहब आप भी ईद मुबारक कह दें जनरल साहब को, और जनरल गुफ्तार आप भी कह दें जी, और ब्रिगेडियर फारूक तो कह ही चुके होंगे, नादिर साहब आप भी कह दें क्योंकि उनको आवाज नहीं, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। बड़ी नवाजिश सर। अगर जनरल गुफ्तार शाह साहब अगर आपने कोई बात करनी है फाइनल वर्ड तो प्लीज जी। मैं कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो आपको मैंने प्राइवेटली बताया भी था, जो मेरी जो रिसेंट पोजीशन ऐसी रही है जो मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जनरल इंप्रेशन, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल जो सबको पता है, उस पर मैं थोड़ी सी बात इस वक्त कर सकता हूँ, अगरचे वो मौजू नहीं है आज के इस प्रोग्राम का। पहली बात तो मैं एक शेर जो मुनीर न्याजी का है, कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी, जबकि ऑटोमन एम्पायर ने पाबंदी लगाई हुई थी कि आप फ़लस्तीन में कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, फॉरनर कोई भी। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी उन्होंने इतना रिलैक्स कर दिया कि चलो यहूदी जो हैं वो खरीद सकते हैं, और फिर उसके बाद जो अरबों ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेचनी शुरू की, और स्पेशली टुवर्ड्स आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे तबाही मच गई। और चूंकि यहूदियों के पास पैसे बहुत थे, तो एट वन टाइम उन्होंने ऑलमोस्ट जेरूशलम के इलाके में आधी से ज़्यादा ज़मीन खरीद ली थी। ये जंगें और ये तो अलग एक वाक़या है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सोशल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स हैं वो भी बड़े नेगेटिव रहे हैं। एक तो वो मरंदा शौक वीसी वो उधर से था। फिर उसके बाद अगर हम चले जाएं, जब हम सऊदी अरेबिया में थे 81-83 में, उस वक्त के हालात को देखें और आज के हालात को देखें तो अरबों में भी बहुत तब्दीली आ गई। उस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं वो इनके लिए बहुत महबूब थे, करीब थे, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनका ये बहुत ख्याल रखते थे। अभी इस वक्त फ़लस्तीनियों को वो इसराइल से ज़्यादा अपना दुश्मन अगर नहीं है तो दोस्त भी नहीं समझते। ये दूसरी बड़ी तब्दीली आ गई है। इसकी वजह क्या है वैसे? उसकी वजह तो ये जो बैनुल अक़वामी हालात हैं ओवरऑल, चूँकि अमेरिका की ज़ेर निगरानी चल रही हैं सारी पॉलिसीज़, और जिसमें पीस ट्रीटीज़ भी हुई आफ्टर 73 वॉर, 80s में, 90s में इजिप्ट है और जॉर्डन है और इसी तरह। तो वो तो हालात चेंज होते गए, कुछ चूँकि अरब बैकफुट पे ही रहे। इसमें अपनी गलतियों का मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ। फिर ये 79 में, जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं, और ज़्यादातर लोग जनरल ज़िया-उल हक को ब्लेम करते हैं कि जी उसने इतने हज़ार फ़लस्तीनी मार दिए। अम्मान के करीब ही एक शहर था, कस्बा था, उसमें उसके हालात को अगर आप देखें तो अलकरामा की एक जंग हुई थी आफ्टर 73 वॉर, ये किंग हुसैन ब्रिज पे वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक के दरमियान, नॉर्थ ऑफ डेड सी। तो वहाँ पे इजराइलीज ने एक अटैक किया था एक आर्मड ब्रिगेड से, जिसको इन्होंने रिपल्स किया जॉइंटली, PLO ने और जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने, और बड़ा नुकसान किया, और दे हैड टू गो बैक और सीज फायर हुई है। ये 73 के डिबैकल के बाद एक बड़ी मोरल बूस्टिंग एक सिचुएशन थी फॉर पैलेस्टीनियंस एंड जॉर्डेनियंस। लेकिन पैलेस्टीनियंस ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने इसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने उर्दन में एक मतवाज़ी हुकूमत कायम करनी शुरू कर दी। जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इरबद शुमाल में, उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ अपनी हुकूमत चला दी। और अम्मान में जगह जगह उन्होंने अपनी चेक पोस्ट लगा दी, अपनी मोबाइल चेक पोस्ट, जीपें चल रही हैं, ऊपर गनें लगी हुई हैं। तो कोई भी मुल्क कितना ही आपसे हमदर्द क्यों ना, वो ये नहीं मान सकता कि उसके अपने मुल्क में आके वो ये करें। तो अल्टीमेटली किंग हुसैन को ये ऑपरेशन करना पड़ा। और चूंकि जनरल ज़िया एक एडवाइज़र थे, उनको उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं जी कमांड दे दी थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड में नज़र नहीं आया। वो आर्मड ब्रिगेड था एक, वो वहाँ पे उसको डिवीजन ही कहते हैं, अगरचे वो डिवीजन नहीं था, 2 रेजिमेंट्स थी उसमें। तो उन्होंने और कुछ आर्टिलरी और कुछ इन्फेंट्री लगा के तो वहाँ पे काफ़ी लोग मर गए फ़लस्तीनी, और अल्टीमेटली फिर फ़लस्तीनी जो लीडरशिप थी उसको वहाँ से मुल्क बदर कर दिया, एंड दे हैड टू गो टू बेरूत। पहले सीरिया गए और वहाँ से बेरूत गए। तो कुछ मैं कह रहा हूँ कि गलतियाँ अपनी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की हैं। चूँकि इस वक्त पैनल पे हम सारे अपने दोस्त बैठे हुए हैं, इसलिए बात मैं कर सकता हूँ। सही बात। फिर उसके बाद जब ये पीस ट्रीटी हुई उर्दन के साथ, उर्दन के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है ना, उसके पास रिसोर्सेज है ना तेल है, तो उसकी तो अंडरस्टैंडेबल है कि उन्होंने फिर भी एक रिलेटिवली ऑनरेबल एग्रीमेंट किया। मैंने वो पढ़ा एग्रीमेंट, उसमें काफ़ी सारी, और उसमें अमेरिकन अम्ब्रेला है ऊपर सिक्योरिटी का दोनों के लिए।
اس میں بیسک یہی ہے کہ جی ہم ادھر مداخلت نہیں کریں گے, آپ ادھر نہ کریں, اور یہ لائن ہے جو کہ ٹیمپریرلی ایکسیپٹڈ انٹرنیشنل بارڈر آپ سمجھ لیں, اور یہ جو بھی ہے تو وہ تو ان کی تو مجبوری تھی. اب ایجپٹ بہت بڑا ملک ہے, اردن کی نسبت آبادی کے لحاظ سے, ریسورسز کے, افواج کے لحاظ سے ان کے لیے شاید تھوڑی چوائسیز تھیں. اور پھر یہ جو باقی عرب ملک تھے, اگر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے کہ جی ٹھیک ہم پیس ٹریٹی کرتے ہیں, بٹ اٹ ول ناٹ بی اے بائیلیٹرل پیس ٹریٹی, اٹ ول بی ملٹی لیٹرل پیس ٹریٹی, جس میں سارے عرب ایک طرف ہوتے, اسرائیل ہوتا, بے شک امریکہ اس میں بن جاتا, ان کا نمبردار بن جاتا جو بھی. تو وہاں پھر غلطیاں ہوئیں, پیلسٹینینز بھی بیک آؤٹ کر گئے, انہوں نے کہا جی ہم پیس ٹریٹی نہیں کرتے. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پیلسٹینین اس وقت جارڈن کے ساتھ شامل ہو جاتے پیس ٹریٹی میں تو دے کوڈ ہیو ڈکٹیٹڈ بیٹر ٹرمز. دیکھیں ایک حقیقت پسندی ہوتی ہے, ایک جذبات ہوتے ہیں. اگر جو ابھی ان کے حالات ہیں, میں تو چونکہ سارا ایریا دیکھا ہوا ہے, آپ جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں اس کی بھی بارڈر پہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, پیلسٹائن کی تو اپنی کوئی فورسز وہاں نہیں بیٹھی ہوئی. جو لوگ کراس کریں گے ایون ود پاسپورٹس اینڈ ویزاز, ان کو بھی اسرائیلی چیک کرتے ہیں. تو یہ پاکٹس میں جہاں جہاں ویسٹ بینک میں ان کو حکومت دی گئی ہے وہ ایسے ڈولی لنگڑی حکومت ہے, اور وہ اٹس مور آف پولیسنگ. ایک تو یہ ہے. دوسرا غزہ, جس کو ہم اتنا بڑا نام اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا, ویری اسمال پلیس. اور اسرائیلیز کی چونکہ وہ اسٹریٹجک سوچ ہے, وہ کبھی فلسطین کا لفظ نہیں استعمال کرتے, وہ غزہ کا لفظ استعمال کریں گے اور ویسٹ بینک کا لفظ استعمال کریں گے. یہ اسی طرح ہے کہ جب کارگل میں ہم نے آپریشن کیا تو انڈیا نے کشمیر کا لفظ کہیں نہیں استعمال کیا, کارگل کارگل کرتے رہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اسی طرح اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ فلسطین اسرائیل کا ایک ڈسپیوٹ ہے, تو انہوں نے فلسطین کا لفظ ہی نہیں یوز کرتے ہو کہ جی غزہ صحیح ہو رہا ہے اور ویسٹ بینک صحیح ہو رہا ہے. تو ہم لوگ ذرا سادہ اور جذباتی ہیں, ہم ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ان کی سوچ کو میرا خیال ہے کافی حد تک نہیں سمجھ سکتے. جی جی, اور جو کہ ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہے. بس یہ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے, اور اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کا سبب فراہم کرے کہ جس میں دونوں جو طرفین ہیں ان کے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ٹھیک ہونا جی. کیونکہ دیکھیں نا, ہمارا کشمیر کا ایشو بھی ہے, وہ بھی اس طرح ہی چل رہا ہے, فلسطین کا ایشو ہے, وہ بھی اس طرح ہی چل رہا ہے, اور مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی امبیرسمنٹ ہے کہ وہ کیا کرے اس حوالے سے. میرے خیال ہے کہ کشمیر جو ہے اس میں ہماری پوزیشن کہیں بہتر ہے, کیونکہ کشمیری اتنے بے بس نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے, ساتھ پاکستان کی بارڈر ہے, ادھر چائنا کی بارڈر ہے, وہ تو بہت بے بس ہیں, کیونکہ کچھ ایک تو چاروں طرف سے جانوں کا کوئی طرف سے, پھر ان کے تعلقات عربوں سے بھی اچھے نہیں رہے نا. ابھی یہ مسئلہ ہو گیا, پہلے تو یہ تھا کہ صرف اسرائیل کے ساتھ مسئلہ تھا, ابھی ان کا عربوں کے ساتھ بھی آپس کا مسئلہ ہے. ابھی اس وقت سوائے کویت کے, قطر کے, اردن کے, اس خطے میں, اور سیریا آف کورس, سیریا وغیرہ تو ہے ہی ہیں بیکاز آف وہ جو ان کے, کوئی کسی کو ان سے اوپن ہمدردی نہیں. جو کنڈیم کرتا ہے وہ سب سے زیادہ جارڈن کرتا ہے, اس کے بعد قطر کرتا ہے, اس کے بعد کویت کرتا ہے, اور سیریا آف کورس وہ تو فرنٹ لائن پہ ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں. تو ایک انوائرمنٹ ہی پوری ایسی ہو گئی ہے جس میں فلسطینی پہلے سے زیادہ مظلوم ہو گئے. کچھ ان کی اپنی غلطیاں, کچھ اسرائیل کی چالاکیاں, کچھ ہماری بیوقوفیاں, یہ ساری چیزیں مل کے حالات ایسے ان کے لیے حالات ہو. ابھی ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی جو دکھاتے ہیں آئرن کرٹن کا, کیا ہے آئرن ڈوم ہے, کیا ہے آئرن ڈوم ہے, ہاں جی آئرن ڈوم, یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ان کی صحیح ویڈیوز دیکھیں تو 80% سے زیادہ وہ راکٹس فضا میں تباہ ہو رہے ہیں. 20% جو ہیں جو آتے ہیں ان میں سے 5 to 10% ایکوریٹ ہیں, باقی جو ہیں وہ ان کی ایکوریسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک فورس میں ایک چیز بڑا ضرور کہنا چاہوں گا, اور مجھے موقع ملا تھا دروز ٹیریٹری اور حزب اللہ کے علاقے میں جانے کا, صدرن لیبنان میں, اور اگر اس وقت کوئی اسرائیل کے مقابلے کی, کسی حد تک مقابلے کی کوئی طاقت ہے, وہ حزب اللہ ہے. حزب اللہ نے جس طرح مار کے نکالا تھا صدرن لیبنان سے اسرائیلیز کو 2 دفعہ 80s میں, اور اس کے بعد آئی تھنک کلوز ٹو 2000, اور میرا خیال ہے شاید کسی عرب ملک نے, تو ان کا وہاں پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے جی, اور اس میوزیم میں اسرائیل کے یہ ٹینکس اور APCs اور گنز اور وہ جو پکڑی ہیں انہوں نے اور جو تباہ کیا ہے وہ وہاں پہ ہے, اور ان لوگوں نے بہت اچھا لڑے. آف کورس ان کو بیکنگ سیریا کی تھی اور ایران کی تھی, اور ابھی بھی ہے, لیکن they are the most motivated force, the most, I have seen them, they practically are controlling the entire South Lebanon, بلکہ South بیروت سے لے کر اسرائیلی بارڈر تک, اور کوسٹ لائن بھی اس میں شامل ہے.
یہ سارے وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اگر یہ کبھی اکٹھے ہو جائیں حماس والے اور حزب اللہ والے تو یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اسرائیل کو بنسبت اردن کے یا شام کے یا دوسرے. اب وہ شام کا جو علاقہ ہے گولان ہائٹس وہ نظر آتی ہیں, یہ جنگ یرموک جہاں ہوئی تھی وہاں میں بہت دفعہ گیا ہوں, تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈیفینڈیبل ایریا تھا کہ وہ ڈیو ٹو لیک آف پروفیشنلزم وہ انہوں نے لوز کیا. اگرچہ بڑی قربانیاں دی, سیریا کے بہت لوگ مرے وہاں شہید ہوئے, لیکن دے کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر. تو ہم لوگوں کو ایک پورا ری اپریزل کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, اور ایک پالیسی بنانی ہے جس طرح یہودیوں نے 250 سال پہلے سے شروع کی ہوئی ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. اس کے بغیر اگر ہم یہ فائر فائٹنگ کریں گے, آج غزہ پہ 2 بام گر گئے, ایک بلڈنگ گر گئی, اور یہ آپ کے ایک جرنلسٹ آپ کے ہاں مرتا بھی نہیں, اس کے اوپر صرف اٹیک ہو جاتا ہے, پوری دنیا میں کتنا شور مچتا ہے. ہاں پوری وہ بلڈنگ تباہ کی گئی جس میں الجزیرہ سمیت تمام نیوز ایجنسیز کے دفاتر تھے. وہاں کوئی کسی کو شور نہیں مچا رہا, کوئی کچھ نہیں ہے. تو اے پی کا بھی تھا, اے پی کا اور باقی پریس کا وہاں آفس تھا, اور بہت سارے اور بھی تھے, اور کوئی اس میں ملیٹنٹس نہیں تھے, کوئی ایسی فورس نہیں تھی, لیکن ایک بدماشی ہے کہ جی. اور اچھا سر, یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ لارڈ واجد خان صاحب یو کے سے. میرے دوست بھی ہیں, میرے کزن بھی ہیں, اور میرے بہت ہی پیارے عزیز بھی ہیں. تو ان کو میں بعد میں پوچھوں گا کہ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں, لیکن ابھی چونکہ آ گئی ہیں تو اس لیے ذرا گپ شپ ان سے لگاتے ہیں. لارڈ بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم اسرار بھائی, میری طرف سے سب آپ کی تمام پانوں کو عید مبارک, اور معذرت بھی کرتا ہوں. میں یہاں ایک فلسطین کا ایک پروٹیسٹ تھا, تو میں ادھر سے ابھی واپس آیا ہوں, تو میں نے اسی پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. جنرل صاحب ابھی اسی کے حوالے سے پورا بیک گراؤنڈ ہمیں دے رہے تھے. تو اچھا ہے ذرا آپ بھی اس میں بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی, کیوں نہیں رکوا پا رہی, ساری دنیا لگی ہوئی ہے, اور وہ جناب امپیونٹی کے ساتھ اٹیک کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. آج بھی بلڈنگ اڑا دی ہے انہوں نے پوری میڈیا کی. ہاں یہ تو دیکھنا سمپل ٹرمز میں اگر میں کہوں گا, یہ تو ہے تو بدماشی ہے نا. یہ دس از نو ریگارڈ فار انٹرنیشنل لا. یہ جو انلیگل سیٹلمنٹس یہ جو ہو رہا ہے سیٹلرز کے حوالے سے, دس از دا ہائیسٹ ریگارڈ آف وائلیشن. تو انفارچونیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بہت ہی سائلنٹ رول ہے لیٹنگ اٹ ہیپن. اور یہ جو ابھی سن رہا تھا کہ انہوں نے جو میڈیا ہاؤس کو بھی, جہاں الجزیرہ بیس تھے, انہوں نے بھی وہاں بھی وہ فائرنگ بم وہ دھماکہ کیا ہے. تو دس از اے ڈائریکٹ اٹیک آن پریس. جو وہاں رپورٹ کر رہے تھے وہ مناظر دکھا رہے تھے لوگوں کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو. سو اٹس اے ویری ہیوج وائلیشن. میرا جو اپنا رول تھا کہ میں اپنے جو اندرونی پارٹی میں ایز اے لارڈ ویکینڈ لیڈرشپ کے ساتھ میری تو مطالبے تھے اس ایشو پر, کافی وہ سائلنٹ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ریسنٹلی آج بھی میں دیکھ رہا تھا, اچھا ایک کنڈیمنیشن وہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ایک کنسسٹنٹ لائن رکھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ان گورنمنٹ, تو بورس جانسن اور ان کے یار دوست ان میں بھی کچھ کانشیس ہونی چاہیے. ہاں بالکل بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. لیکن چونکہ اب آپ وہاں سے پروٹیسٹ پہ گئے ہوئے تھے, تو پروٹیسٹ کیسا تھا, کتنے لوگ تھے اس میں؟ دیکھیں ہر شہر میں, لندن میں, برمنگھم, مانچسٹر میں, میں تو یہاں لوکل گیا تھا, بہت سارے لوگ تھے, ہزاروں یہاں لوکل 1000 کے اوپر تھے, لیکن لندن میں کتنے ہزار تھے, مانچسٹر, برمنگھم. دیکھیں وہاں جو تصویر جب بچے بچیاں جب ہم وی آل پیرنٹس ہو محسوس ہوتا ہے ایک, اور یہ بھی بہت ضروری, یہ میں بات نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ وہاں جو بہت سارے لوگ وہ مسلمان نہیں تھے, کیونکہ یہ تو ایشو ہے انسانیت کا, ہیومینٹی کا ایشو ہے. تو کافی لوگ وہ فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن میں نے تو ایک جو غصہ ہے, ایک اینگر ہے, اس طریقے سے ہمیں چالن کرنا چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھی حکمت عملی سے ہماری گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ عوام یو کے کی, we are really concerned, we are really angry, we are really frustrated about the inaction of our government. اور پھر جو بالخصوص ہے جو نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو کر رہے ہیں اس طریقے سے ابھی, اور یہ بہت ڈفرنٹ ایشو دس ٹائم. دیکھیں 2008 میں 14 میں یہ 7-8 سال بعد ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ ابھی جو اسرائیل کے اندر جو عربز اینڈ جو جوئش کمیونٹی کے درمیان وہ جو ان دا کنٹری یہ جو ایشوز چل رہے ہیں, رائٹس, وہ مابنگ, لنچنگ, یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں.
सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इट्स अनबिलीवेबल। चलें जी, अब वाइंड अप चूंकि हमने करना था और एंड टाइम पे लॉर्ड वाजिद भी आ गए मैं एक बात कह दूं क्विकली, अपना इसरार भाई, मैं क्विकली एक दो बातें कह दूं कि अभी चंद दिनों पहले पीए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड हो रही थी, तो मेरा ख्याल है उसी में उन्होंने ये ऐलान भी किया और शायद दिखाया भी टीवी पे कि जिस तरह हमारे ब्रदरली अरब कंट्रीज के लोग कैडेट्स आते हैं और उनकी पीएमए में ट्रेनिंग होती है, इसी तरह शालपुर नेवी की एकेडमीज में तो कुछ पैलेस्टीनियन कैडेट्स भी थे, वो भी पास आउट हुए थे हाल ही में फ्रॉम पीएमए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बेशक वो हैं हमसे फिजिकली बहुत दूर, लेकिन ओवर द इयर्स लास्ट 2-3 डेकेड्स मैं ये देखता रहा हूँ कि पैलेस्टीनियन कैडेट्स यहाँ पे आते रहे हैं, दे बीन ट्रेन्ड इन आवर मिलिट्री एकेडमीज। एक तो ये बात है। तो दूसरा ये है कि 67 तो शायद नहीं, इट वाज द 73 अरब इजरायली वॉर। ये तो एक नोन चीज़ है, जिस तरह हमारे जो पीएफ के जो एक दो कुछ पायलट जो डेपुटेशन में गए हुए थे सीरिया की तरफ से और गालिबन जॉर्डन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद सीरिया में, तो वो उन्होंने दे शॉट डाउन इजरायली एयरक्राफ्ट्स इन एयर कॉम्बैट। तो ये हमारा एक किस्म की एंगेजमेंट उनके साथ रही है। तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई हमारी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई आज हालात में, जब हम खुद काफी यहाँ पे पिन डाउन हैं बड़ी चीजों में, कि हमारी कोई डायरेक्ट वहां पे देखे ना, यमन के जब मामला आया तो हमारी पार्लियामेंट ने बड़ा क्लियरली कहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और सऊदी बड़े नाराज हुए थे। हमने कहा था जी द सऊदीज वांटेड अस इन यमन, हमने कहा था नो बूट्स ऑन ग्राउंड, बिकॉज अब हमने एक मेरे ख्याल कॉन्शियसली एक फैसला कर लिया है कि हमने बहुत दूसरी लोगों की जंगों में हिस्सा लिया है और बहुत फ्रंट लाइन स्टेट बने हैं दूसरे ममालिक के लिए, वो तो फिर निकल गए तो नुकसान हमें भुगतना पड़ा और अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म की, और मैं मेरा जाती भी ये सोच यही है कि पाकिस्तान को किसी सूरत में अदर देन जो मैंने शुरू में कहा था मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, और ये हमारा रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा कोई और मामला जो है किस किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है वहां पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनका काम है कि वो जो डायरेक्टली अफेक्टेड है वो उसको देखें। ठीक है, ब्रिगेडियर इमरान, फाइनल वर्ड जी। हसाना साहब, ये आजकल हमारे सोशल मीडिया में बड़ा आ रहा है कि जी पाकिस्तान के फौजियों तुम किधर हो, और तुर्की वाले तुम किधर हो, ईरान के मुजाहिदो तुम किधर हो और आ जाओ। ये बिल्कुल 21st सेंचुरी है। मेरा जाती ख्याल ये है कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की निस्बत सिंपल मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है सिचुएशन को ऑन ग्राउंड, क्योंकि एक हद तक तो सब तस्लीम कर चुके हैं कि जी टू स्टेट्स का जो है कॉन्सेप्ट कि जी लिविंग साइड बाय साइड, वो तो अभी मतलब इस वक्त तो वही है नॉर्मल। अगर उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लें एज टू ऑटोनॉमस स्टेट्स तो बहुत बड़ी बात होगी। हिस्ट्री में आपके पास बहुत टाइम होगा, ये तारीखें कौमों की सेंचुरीज पे मुहित होती हैं, हजारों सालों पे होती हैं। बाद में आपके पास बहुत अच्छे वक्त आएंगे जहां आप फलस्तीन सारा भी ले सकते हैं। कम से कम अभी आप अगर सिर्फ आपस में इत्तेहाद कर लें, चाहे वो OIC के बड़ी बात, और उस जिसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये महसूस करें कि अगर हम ओपनली साथ देंगे इसराइल का और उसकी जो एग्रेशन है उसका, तो हमारे साथ जो है इतने बावन मुल्क जो हैं वो हमारे उनके साथ ताल्लुकात मुतासर होंगे। अगर इतना भी कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी। मिलिट्री ऑपरेशन एट द मोमेंट मुझे आउट लगता है, जो हालात इर्द गिर्द के हैं, फिर जिस तरह पीस ट्रीटीज हुई हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसमें हमास है या उसमें हिजबुल्ला है और मे बी सीरिया टू सम एक्सटेंट वर कंसिडर्ड टू बी रोग्स इन द वेस्ट। ये 2-3 एलिमेंट्स हैं जो कि फिजिकली लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं इस वक्त। बाकी सियासी जंग है, और अगर हम उसमें इत्तेहाद के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें तो मेरा ख्याल है हम बहुत अचीव कर सकते हैं। शुक्रिया। ब्रिगेडियर इमरान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। या आई थिंक आई एग्री विद ऑल पैनलिस्ट, जैसे वो कह रहे हैं। आज जैसे कि बात हो रही थी कि ज़्यादातर हमारी मुलाकातें वर्चुअल हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी सपोर्ट जो है फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज इज ऑल्सो कमिंग इनटू दैट डायमेंशन कि ज़्यादातर वर्चुअल ही होती जा रही है। बट यहाँ पे जब हम वर्चुअल सपोर्ट की बात करते हैं तो आई थिंक इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फिनोमिनल सपोर्ट दैट कैन बी जनरेटेड। तो पहले तो हम सब जानते हैं कि जो मुस्लिम उम्मा इज डेड एंड बरिड, तो वो अभी है नहीं।
اور ویسٹ نے اتنی بری طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور پہلے سیکٹیرین بیسس پہ، ایتھنک بیسس کے اوپر، ریجنل بیسس کے اوپر، اور پھر پیس میل ایک ایک کر کے اس نے چن کے سب کو تباہ اور برباد کر دیا. اسٹارٹ فرام سیریا، گو اراؤنڈ the Middle East, and you will find that every country has been neutralized either through war or through peace agreements. تو اگر جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایز این اما وی کین کمبائن ٹوگیدر، اور اتنا ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنا پریشر جنریٹ کریں ایز اے گروپ، ایز اے پریشر گروپ، کہ وہ مجبور کر دے ویسٹ کو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا جو بھی معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے کوئی پازیٹیو اسٹیپس تو لے. ایک ایفرٹ ہوئی تھی 74 میں، مڈ 70s میں، جب شاہ فیصل نے آئل کو یوز کیا تھا ایز اے ویپن. اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا. واٹ ہیپن ٹو ذوالفقار علی بھٹو، واٹ ہیپن ٹو شاہ فیصل، واٹ ہیپن ٹو قذافی لیٹر آن. جتنے بھی میجر اس وقت کے جو تھے رولرز یا پلیئرز جنہوں نے آئل کو ایز اے ویپن استعمال کرنے کا مطلب حصہ لیا تھا، جس میں وہ بہت ہی ان کے اندوناک قسم کے ان کے اینڈ ہوئے تھے. تو بہرحال اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم یونائٹیڈ نہیں ہوں گے we will never be able to do much. تو خالی ورچوئل بات چیت کرنی ہے، اگر خالی ڈپلومیٹک اوفینسو اینڈ میڈیا اوفینسو، تو that is not going to make any difference to anyone. بالکل ٹھیک. Until and unless we use whatever clout we have, be it economic, be it oil. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ اربوں کی اکنامک پاور ملائیں اور باقی نان عربس کی ملٹری اور ٹیکنالوجیکل پاور ملائیں، put together you are such a big force کہ you just cannot be ignored. But the point is کہ آپ کرتے تو ہو. ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ یوٹوپین تھنکنگ ہے، کیونکہ اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے بہت بڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ مسلم امہ کو، مسلم کنٹریز کو اس طرح کی لیڈرشپ مل سکے. لیکن چونکہ اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا، بریگیڈ صاحب، ڈاکٹر ناظر، فاروق صاحب، جنرل گفتار شاہ صاحب اینڈ لارڈ واجد، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کا جو انٹریکشن ہے آف اینڈ آن کرتے رہا کریں، تاکہ آپس میں گپ شپ چلتی رہے اور ایک دوسرے سے ہم سیکھ سکیں. تو آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراق ثنا کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.